اللهم انت سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام تحية والإكرام جد الحسن والحسين والقاسم محمد المصطفى. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صلى اللهم صل على محمد وعلى حضرت عباس علمدار کے پرچم اٹھانے والے حضرات فرش کرم تشریف فرما ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے مجلس کے نام پر خدا اسے نیکی عنایت فرماتا ہے. ایک ایسی نیکی عنایت فرماتا ہے جو حج کے برابر ثواب ہے, عمرے کے برابر ثواب ہے. تو وہ نیکی ہمیں ملے گی کیسے؟ کہا نیکی اس طرح سے ملے گی جو فرش ادا پر بیٹھے گا. فرش ادا پر بیٹھنے سے نیکی ملتی ہے, گلیوں میں ٹہلنے سے نیکی نہیں ملتی ہے. پانچویں امام نے فرمایا جو آپ کا فرش ادا پر وقت گزرتا ہے, جو مجلسوں میں وقت گزرتا ہے, وہ تمہاری زندگی میں شمار نہیں ہوتا, وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیے گا, آپ ہمارے ساتھ بولیے گا تاکہ گفتگو آسان ہو جائے اور آپ کو لطف اٹھائے. تو جو ہم آیت کی پڑھنے کا شرف حاصل کیا, جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا, ارشاد ہوا فاذکرونی اذکرکم. میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 152. سورہ بقرہ کے مطلب ہے گائے, گائے والا سورہ. اللہ نے گائے کے نام کا سورہ رکھا ہے. سورہ فیل ہاتھی والا سورہ. سورہ نمل چوٹیوں والا سورہ. سورہ دخان, یہ دخان کے مطلب ہے وہ سورہ رکھا گیا جو دسترخوان والا, جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے. تو ہر چیز اللہ نے اپنے اپنے اعتبار سے رکھا ہے. ہاتھی والا بھی سورہ, چوٹیوں والا بھی سورہ. نحل جو سورہ نحل ہے 16واں سورہ ہے, مدھو مکھی کے نام سے سورہ رکھا گیا ہے. یعنی اللہ اگر چاہتا تو اپنے نام پر سارے سورے رکھ دیتا. یہ اللہ نے الگ الگ نام پر سورہ کیوں رکھا؟ کوئی سورہ فیل ہے تو کوئی سورہ بقرہ ہے, گائے والا سورہ ہے. کوئی نمل کے نام سے ہے, چوٹیوں کے نام پر رکھا گیا. کوئی مدھو مکھیوں کے نام پر رکھا گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ چاہتا تو اپنے نام پر سوروں کے نام رکھ دیتا, کیونکہ قرآن خدا کا ہے. کہا تمہیں بتلانا یہی چاہتا ہے کہ دیکھو ہمیں صرف نہ یاد رکھو, ان کو بھی یاد رکھو جن کا ہم نے ذکر قرآن میں کیا ہے. اگر ہاتھی کا ذکر کیا تو انہیں بھی یاد رکھو. وہ ہاتھی جو ابرہہ شدہ تھا, اور یہ ہاتھی جو آیا تھا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے, اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا. صرف ہاتھی دشمن خدا نہیں تھا, وہ ہاتھی عذاب شدہ اور وہ ابرہہ جو دشمن خدا مقابل میں آیا تھا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے. تو اللہ نے اپنے پرندوں کو حکم دیا, ننھی ننھی ابابیلوں کے منہ میں ننھے ننھے کنکر. جب بارش کی ہے تو تاریخ بتاتی ہے, قرآن گواہ ہے, وہ لوگ ایسے فنا ہوئے جیسے معقول. معقول کے مطلب بھوسا ہو جانا. جو ابرہہ آیا تھا بادشاہ کا نام تھا ابرہہ, ہاتھی والا لشکر. اسی لیے اللہ نے سورہ فیل کے نام سے رکھا ہے. کہا دیکھو یہ دشمن خدا ہے, کہا اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کو اٹھانے آیا تھا. یہ خانہ کعبہ کو اٹھانے آیا تھا, اس لیے فیل کے نام سے مشہور ہو گیا. جو خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا وہ تو دشمن خدا تھا, ابرہہ وہ بھی دشمن خدا تھا. لیکن ابابیل نے برباد کر دیا. اتنی پرندے خدا کی طرف سے, اور پرندوں کے منہ میں چوچ میں ننھے ننھے پتھر, اور پتھروں کی جب بارش ہوئی تو انہیں معقول کر دیا. معقول کے مطلب بھوسا کر دیا. گیہوں کٹتا ہے نا تو بھوسا
ऐसे ही लश्कर भूसा हो गया। अब जरा सोचिए परिंदों में कितनी ताकत है तो खुदा में कितनी ताकत होगी। हुक्म दिया तो इन्हें बर्बाद कर दिया। जो खाने काबा को उठाया उसे बर्बाद किया, जो अहले बैत को सताया वो भी बर्बाद हुआ। जो भी अहले बैत को सताया गया, जब भी सताया गया, जिसने भी सताया वो बर्बाद हो गया। आइए हम मौजू की तरफ आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह कह रहा है आप मेरा जिक्र करिए, अब आपका जिक्र करेंगे। आप हमें याद रखिए, हम आपको याद रखेंगे। किससे कह रहा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे जिक्र को कायम कर दूंगा। अल्लाह के वली ने, नबी के नवासे ने बचपन में अल्लाह का जिक्र किया, जवानी में अल्लाह का जिक्र किया। एक सलवात पढ़े आप थोड़ा और आगे तशरीफ ले आइए, थोड़ा और आगे मेरा साथ दिएगा ताकि मजलिस गुफ्तगू आसान हो जाए। फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे जिक्र को कायम कर दूंगा दुनिया में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जिक्र किया, बचपन में अल्लाह का जिक्र किया, जवानी में अल्लाह का जिक्र किया, ज़ेर खंजर अल्लाह का जिक्र किया, नोके नेज़ा पर अल्लाह का जिक्र किया। यानी यूँ बतला दूँ, ज़ेर खंजर भी अल्लाह का जिक्र किया, नोके नेज़ा पर खुदा का जिक्र किया। तो अल्लाह ने वादा किया तू बंदा हो के हुसैन, तू बंदे हो के मैं बंदा हो के भी मेरे वादे को निभाया। मैं अल्लाह हो के तुझसे ये वादा करता हूँ कि दुनिया में इतनी मस्जिदें नहीं होंगी जितने तेरे अलम होंगे, जितने तेरे अलम होंगे। आज देखिए दुनिया में यही वजह है कि जितनी जागीर हुसैन की किसी की नहीं, जितनी जागीर हुसैन की किसी के नहीं, जितने अलम हुसैन के किसी के नहीं, जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का किसी का नहीं, जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का किसी के नहीं, जितने नौकर हुसैन के किसी के नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे वादे को निभाओ, मैं तुम्हारे वादे को दुनिया में कायम कर दूंगा। जितनी इतनी मस्जिदें नहीं होंगी जितने तेरे अलग होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के वली ने, इमाम हुसैन ने वादा निभाया। अल्लाह ने इमाम हुसैन के वादे को दुनिया में कायम कर दिया। अब यजीद जो नबी का खलीफा लोगों ने तस्लीम किया, उसने, यजीद ने कहा मैं नबी का खलीफा, दुनिया ने माना हाँ। उसने कहा मैं नमाजी, दुनिया ने माना हाँ। मैं रोज़ेदार, दुनिया ने कहा हाँ। मैं अच्छा इंसान, दुनिया ने कहा हाँ। जहाँ सारी दुनिया ये कह रही थी मैं रोज़ेदार, मैं नमाजी, मैं रोज़ेदार, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं जुआरी नहीं हूँ, वहीं पर जो सारी दुनिया यजीद में हाँ मिला रही थी कि मैं नबी का खलीफा, मैं नमाजी, मैं अच्छा इंसान, वहीं पर इमाम हुसैन की आवाज़ गूंजी तू अच्छा इंसान भी नहीं है, बल्कि तू जुआरी है, बल्कि तू शराबी है, अच्छा इंसान नहीं है। जब इमाम हुसैन ने नहीं कहा, नहीं कहने के बाद मदीने से निकलते हुए करबला आगे आती। इसी नहीं को करबला में 72 जगह पे बांट दिया, इसी नहीं को 72 जगह पे करबला में बांट दिया। और इसी की नहीं को इम्तिहान इमाम हुसैन ने लिया। कहा नहीं का इम्तिहान हुआ, जब नहीं का इम्तिहान हो गया तो नहीं को खाके शिफा में मिलाया, नहीं को खाके शिफा में मिलाया, आसमान में बिखेर दिया, आसमान से उड़ती हुई अज़ादारों में आए। आज दुनिया हमसे पूछती है मजलिस छोड़ दो नहीं, मातम छोड़ दो नहीं, जुलूस छोड़ दो नहीं, अलम छोड़ दो नहीं, ताज़िया छोड़ दो नहीं। सलवात पढ़े ये नहीं उड़ती हुई इमाम हुसैन ने जब कहा नहीं तो अच्छा इंसान भी नहीं, नबी का खलीफा भी, ये दुनिया ने कहा, इमाम हुसैन की आवाज़ बदल गई। इसी नहीं को खा के शिफा में मिलाया, आसमान में बिखेर दिया, आसमान से उड़ती हुई अज़ादारों में आए। आज दुनिया हमसे पूछती मस्जिद छोड़ दो नहीं, हुसैन छोड़ दो नहीं, मातम छोड़ दो नहीं, जुलूस छोड़ दो नहीं, अलम छोड़ दो नहीं, ताज़िया छोड़ दो नहीं। इमाम हुसैन ने सवाल पढ़े लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। इमाम हुसैन ने करबला में छलांग उठाया और सबका इम्तिहान लिया और सब कामयाब हो गए। सबने इमाम हुसैन ने जैसे ही कहा कि आज कोई अगर जाना चाहता है तो वो चला जाए, चराग बुझ लिया, तलवारें निकल आए, अपने अपने घरों में रख दी और रखने के बाद कहा मौला अगर हम
70 मरतबा भी कत्ल हो जाएंगे फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 70 मरतबा यानी मैं कत्ल भी हो जाऊं फिर जिंदा हूँ, फिर कत्ल हूँ फिर जिंदा हूँ, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इतने में इमाम हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया, कहा भैया अब्बास चिराग जलाओ। उस शागिर्दों ने अल्लामा रजब अली बुर्सी से सवाल किया, कहा किबला ये बताइए कि जब चिराग इमाम हुसैन ने बुझाया था तो अब्बास से ही क्यों कहा, और तो बैठे हुए थे किसी और से कह देते। तो उन्होंने फरमाया, कहा सुनो अब्बास से इसलिए कहा कि इमाम हुसैन को इतना यकीन था कि दुनिया छोड़कर चली जाएगी लेकिन अब्बास नहीं जाएंगे, अब्बास नहीं जाएंगे। अब लोगों ने एतराज किया, किबला हमारी तो तकदीर ही खराब है, हमारी तकदीर बेकार है, हमें कुछ मिलता नहीं। तो आयतुल्लाह तकी बहजत ने फरमाया कि आप अपनी तकदीर को खराब न कहना। कहा क्यों? कहा इसलिए न कहना कि आपकी तकदीरी तो है कि हुसैन के मातमदार बना दिए गए, या आपकी तकदीरी है कि हुसैन के अदादार बना दिए गए। कहा तकदीर खराब न करना, तकदीर खराब न कहना। ये जुलजना का हम एहतराम क्यों करते हैं? जब जुलजना निकलता है तो हम ज़ियारत क्यों करते हैं? अल्लामा ताहिर जरवली मरहूम से सवाल हुआ कलकत्ता के मिंबर पर, कहा किबला ये बताइए जैसे ही दुलजना बरामद होता है आप दौड़ पड़ते ज़ियारत के लिए। एक जुमले में उन्होंने जवाब दे दिया, सवाब मरहूम को पहुँचे। उन्होंने मिंबर पर बैठ के सवाल किया लोगों ने, कहा किबला ये बताइए जब ये दुलजना निकलता है तो हम दौड़ पड़ते हैं ज़ियारत के लिए, आखिर क्यों? आप इंसान है अशरफुल मखलूकात, जानवर से इंसान अफजल है, तो जब जानवर से इंसान अफजल है तो ये एहतराम क्यों करते हैं आप? ये एहतराम क्यों करते हैं? क्यों दौड़ कर जाते हैं ज़ियारत के लिए? क्यों आगे बढ़ते हैं? फिर सवाल किया, कहा फिर से दोहरा जुमला, कहा किबला ये बताइए जब जुलजना निकलता है तो आप आगे क्यों बढ़ते हैं? तो उन्होंने फरमाया, कहा सुनो, उन्होंने फरमाया अल्लामा ताहिर जरवली ने कहा सुनो, जुलजना के एहतराम की बस एक ही वजह है कि करबला में 9 लाख इंसान जानवर बन गया था। सलवात पढ़े जिसने हुसैन को पहचाना वो आज तक जिंदा है, और जो न पहचान सका वो जानवर बन गया था। एक जुमले में जवाब दे दिया, कहा करबला में 9 लाख इंसान जानवर बन गए थे, यानी जो हुसैन को पहचान ली वो आज तक जिंदा है। सुलझना ने इमाम हुसैन को पहचाना, गवाही दी सुलझना। तो अज़ीज़ान गिरामी अब्बास अली का बेटा है। इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा कि चिराग बुझाओ, चिराग को जलाओ, रोशन करो। अब अज़ीज़ान गिरामी नबी की एक हदीस सुना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। इमाम हुसैन हिदायत के चिराग है और नजात की कश्ती है। इमाम हुसैन हिदायत के चिराग है और नजात की कश्ती है। अब जिसे भी चाहिए हिदायत, जिसे भी रोशनी चाहिए वो फर्श अदा पर आए, यही नजात मिलेगी, यही नजात की कश्ती है। ये नबी ने फरमाया इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। इमाम हुसैन हिदायत के चिराग है और नजात की कश्ती है। तो करबला में इमाम हुसैन ने चिराग को बुझाया, अब्बास ने जलाया। जो अल्लाह के घर का चिराग जलाए उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन के घर का चिराग जलाए उसे अब्बास कहते हैं। उसे अब्बास कहते हैं। जो 13 बरस की सिन में सिफीन का नक्शा उलट दे उसे अब्बास कहते हैं। जो यजीदियत का जनाजा निकाल दे उसे अब्बास कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास की फजीलत बयान की। 13 बरस की सिन में सिफीन का नक्शा बदल दे उसे अब्बास कहते हैं। करबला पहुंच गए इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को, आज 6 मुहर्रम हो गए, 10 आशूरा का दिन आएगा, इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। तो खत लिखा जाता था कि फौज भेजो, फौज भेजो, फौज भेजो। करबला में यजीद के पास जाता का ये इतने लोगों के लिए इतनी फौजें चाहिए। 25 मुल्कों में खत लिखा गया है कि फौजों को भेजो, फौजों को भेजो, फौजों को भेजो। जो फौजों को इकट्ठा करे वो है यजीद। तो शब आशूर चिराग बुझा के कहे चले जाओ साहब, वो है हुसैन। जो फौजों को इकट्ठा करे, जो फौजों को बुलाए वो है यजीद। तो शब आशूर चिराग बुझा के कहे कि चले जाओ, वो है हुसैन। आपने ये तस्वीर देखी होगी, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब एक
मैसेज पहुंचा रहा था, पैगाम दे रहा था। आप ये बताइए, इंसान जब बचपन में छोटा होता है तो चेहरा एकदम खूबसूरत होता है, जब और बड़ा होता है जवानी के आलम में तो और रौनक बढ़ती है, और जब बुढ़ापे में तब्दील होता है तो रौनक खत्म होता है ना। साइंस कहती है कि मैंने देखा कि ये रौनक बढ़ क्यों रही है, जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती जा रही है रौनक बढ़ती चली जा रही है। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का देखिए चेहरा, एक बार देखेंगे दोबारा देखने का जी चाहेगा। आयतुल्लाह खामनाई साहब का एक बार चेहरा देखे तो दोबारा देखने का जी चाहेगा। आयतुल्लाह तकी बहजत का चेहरा देखे तो दोबारा देखने का जी चाहेगा। साइंस कहती है कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होगा चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, चेहरे की रौनक गायब होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है चेहरे की रौनक बढ़ती चली जा रही है, चेहरे की रौनक बढ़ती चली जा रही है। आखिर वजह क्या है कि चेहरे की रौनक बढ़ क्यों रही है? कि मैंने कहा देखो भैया, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है चेहरे की रौनक बढ़ रही है। ये साइंस हैरान है, ये इसके फिक्र में नहीं आता, इसके दिमाग में नहीं आ रही। ये जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रौनक बढ़ती चली जा रही है। मैंने कहा भैया ये रौनक नहीं बढ़ रही, अली से मिलने की तैयारी हो रही है। सलवात पढ़े दो नारे हैं, एक बाप का नारा है और एक बेटे का नारा है। बाप के नारे से मुल्क घबराते हैं, मुल्क घबरा जाते हैं, और बेटे के नारे से लोग घबराते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि नमाज में अगर किसी का नाम आ जाता है तो नमाज हमारी चली जाती है। याद आता है? एतराज़ लोग करते हैं कि अहले बैत अगर अलैहिस्सलाम का किसी का अगर नाम आ जाए तो नमाज खत्म हो जाती, नमाज बातिल हो जाती। जवाब दे रहा हूँ तारीख से आपके सामने पेश करूँगा कि अगर किसी का नमाज में नाम आ जाए तो नमाज बातिल। तो आप ज़रा बताइए, नियत करिए नमाज की, जो चीज़ याद नहीं थी वो नमाज में याद आने लगेगी कि हमने चाबी कहाँ रखी वो भी याद आएगा, हमने पैसा कहाँ रखा है वो भी याद आएगा, हमें कहाँ जाना है वो भी याद आएगा। ये ख्याल क्यों आ रहे हैं? क्या ये ख्यालों से नमाज नहीं बातिल होती? अहले बैत का नाम आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। अहले बैत का नमाज में नाम आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, होती नहीं? नहीं होती है। अगर ख्यालों से लोगों का नाम आता है तो नमाज तभी बातिल है। अहले बैत का अगर नाम आ जाए तो नमाज बातिल नहीं है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? काम मैं बताऊंगा ऐसे कि नबी नमाज पढ़ा रहे, सहाबा इकराम नमाज पीछे पढ़ रहे, एक बच्चा हुआ दौड़ता हुआ गया और जाने के बाद नबी की पुश्त के ऊपर सवार हो गया। एक मरतबा अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल जाना नहीं जब तक मेरा नबी सजदे से सर न उठा ले, जब तक हुसैन सजदे से उतर ना जाए, नबी की पुश्त से उतर ना जाए, तब तक नबी से कह दो कि सजदे से सर न उठाए। नबी सजदे में है और नबी की पुश्त पर हुसैन है। अब जरा बताइए, परवरदिगार आएगा, जिब्राइल नबी से कह दो जब तक हुसैन अपनी मर्जी से नबी की पुश्त से न उतर जाए
तब तक नबी सजदे से सर न उठाए। वाह, वाह, वाह। जो पीछे नमाज पढ़ रहे वाह, थे, वाह। जब बच्चा चला नबी की पुष्ट पर सवार हुआ, लोग उठते थे फिर सजदे में जाते थे, यही कहते थे हुसैन, फिर सजदा करते थे, हुसैन फिर सजदा करते थे, वाह, 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 हुसैन वाह, वाह। फिर सजदा करते थे। अब जरा बताइए, जो हुसैन हुसैन कर रहा, क्या उसकी नमाज बातिल है? जो हुसैन हुसैन कर रहा उसकी नमाज बातिल है? क्या सजदे में जाते थे, फिर सजदे की हालत में खड़े हो जाते थे, हुसैन को देखते थे? यूं कहूं कि जो सहाबा नबी के थे इमामत की ज़ियारत करके सजदे में जाते थे। इमामत की ज़ियारत करके सजदे में चले जाते थे, तो क्या नमाज बातिल हो गई? कहा नहीं। नबी की पुष्ट पर हुसैन है और सजदे से क्या होना चाहिए कि सर उठा लेना चाहिए। सुभान रब्बी अल्लाह व बिहम्दिही 70 मरतबा नबी ने कहा है। एक मरतबा पढ़ते हुए 2-3 मरतबा, नबी 70 मरतबा पढ़ गए। चाहते तो नबी सजदे से सर उठा लेते। का तुम्हें मालूम नहीं है ये जो पुश्ते नबुव्वत पर हुसैन बैठे हैं दुनिया को पहचान ले, यानी इमाम हुसैन को दुनिया पहचान ले। जो उठ के हुसैन का सजदा कर रही थी, अब उसकी नमाज तो बातिल नहीं है। किसी का ख्याल नमाजों में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए। अब नबी की पुष्ट पर हुसैन सवार है, लोग उठते थे फिर सजदे में जाते तो यही कहते थे हुसैन हुसैन, इमाम हुसैन का नाम लेते थे। ये नमाज की अहमत इमाम हुसैन ने बढ़ाई है। अपने नमाज की अहमत कौन जानता? बताइए जरा कि नमाज बातिल हो गई? नहीं बातिल। जो इमाम हुसैन का नाम होता है नमाज बातिल नहीं होती। इमाम हुसैन है किसके बदले? है ना? तो अज़ीज़ान गिरामी, नबी ने फरमाया कि नल हुसैन और सफीन इमाम हुसैन हिदायत के चराग है और नजात की कश्ती। अगर दुनिया में नजात चाहिए तो फर्श अदा पर आकर बैठ जाओ। कश्ती में सवार होना है तो फर्श अदा पर बैठ जाओ। कश्ती पे सवार अगर होना है तो आके नजात में बैठ जाओ। एक मैसेज पहुंचा रहा हूँ, एक पैगाम पहुंचा रहा हूँ कि जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान आया, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, जब तूफान आया, का तूफान पहले नहीं आया, अल्लाह ने पैगाम दिया, नूह नबी कश्ती बनाओ, नूह नबी कश्ती बनाओ। कश्ती बनाना शुरू किया। का पहले कश्ती बनाया? का एक दरख्त लगाया, 100 साल उसको तैयार किया, वो दरख्त काटा गया, कश्ती बनना शुरू हुई। कश्ती बनते बनते एक मरतबा रौजा ने शक किया, नबी की बीवी ने नबी पर शक किया। का ये कश्ती बना रहे हैं, ये पागल हो चुके, ये दीवाने हो चुके, न कहीं सैलाब है, न कहीं बारिश है, न कहीं तूफान है, ये ऐसी कश्ती बना रहे हैं। नबी की बीवी नबी पे शक करे तो वो नबी की बीवी नहीं होती है। अब जिसने शक किया वो नबी की बीवी नहीं है। अब जैसे ही कहा कश्ती बनाना शुरू हुई, कश्ती बनी। परवरदिगार अब चलेगी कैसे? का आसमान से 5 कीले आए, वो भी पंजतन के नाम। जहाँ पंजतन के नाम की कीले होंगी वही कश्ती चलेगी। जनाबे नूह की कश्ती ने पंजतन की नाम की कीले लगी है। जब कश्ती बंद हो गई, तैयार हुई, अल्लाह ने कहा फला तारीख को अदाब नाजिल हो जाएगा। अदाब नाजिल हुआ, लोग कश्ती में सवार हो गए। बेटा नहीं सवार हुआ नूह का, बीवी नहीं सवार हुई नूह की। कहा तो पहाड़ की चोटी पर पना ले रहे थे, पहाड़ की चोटी पर पना ले रहे थे। कहा ठीक है जाओ। परवरदिगार से दुआ की, परवरदिगार मेरा बेटा है। आवाज परवरदिगार आई, आपके अहल से नहीं है, आपका बेटा जब तक था जब आपके हुक्म के ताबे था, जैसे ही ताबे से हटा वो आपके अहल में नहीं है। पहाड़ पे पना ले, पहाड़ पे जाके पना ले। सैलाब पहुंचा, आसमान से मूसलाधार बारिश हुई, तूफान आया, पहाड़ तक पानी पहुंच गया, बीवी भी गर्क हो गई, बेटा भी गर्क हुआ। अब बात समझ में आ गई ना? जो नबी की बात अगर नबी की बीवी न माने तो वो गर्क हो जाती है, अगर मोहम्मद की बात उम्मत न माने तो उम्मत भी गर्क हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। नूह की कश्ती जब चली, लोग सवार हुए, सवार होने के बाद पंजतन के नाम की कील लगी। एक जिन आया, उसने चाहा कि जनाब नूह की कश्ती को गर्क कर दे।
जनाब नूह ने न जाने किसे बुलाया, हवा के दोष पर घोड़े पर सवार होके आया और वो आने के बाद आन के मेरा हाथ, एक हाथ से दोनों हाथ पकड़े और रस्सी से बांध दिए। वो कोई और नहीं था, जिन था। चाहता था कि जनाब नूह की कश्ती को गर्क कर दे। नबी के पास लाया गया, कहा या नबी अल्लाह कुछ मुश्किलें हैं, हल कर दीजिए। कहा क्या तुम्हारी मुश्किल है? कहा मुश्किल ये है कि हमारे जरा से हाथ बंधे हैं, इसको खोल दीजिए। अब नबी सवाल करेंगे, किसने बांधे, क्यों बांधे, किस लिए बंधे, किसने बांधे? का जिसने बांधे वही खोलेगा। का वो कौन था? अभी बताएंगे आगे। का जिसने बांधे वही अब खोलेगा हाथ को। अब जैसी ही मस्जिद छलक रही है, नए नए मुसलमान हुए हैं, मस्जिद छलक रही है। एक मर्तबा अली ने जैसे कदम रखा, अब लोगों के दिलों में हैशत जो जरा थी, जब जिन दाखिल हुआ तो घबरा गए, ये तो जिन्नात दाखिल हुए। जब अली ने कदम रखा तब लोगों को सुकून मिला, राहत आई कि अब अली आ गए हैं, यानी यूं कहते मुश्किल कुशा आ गए हैं, अब हमारी मुश्किल को आ गए हैं। एक मर्तबा जब अली करीब जाते रहे, एक मर्तबा वही शख्स ने उसको देखा, यानी अली को देखा, नबी के पीछे छुपने लगा। नबी ने झटका दिया, कहा पीछे क्यों छुपता है? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, यही तो वो शख्स है जिसने मेरे हाथ बांधे थे, जिसने मेरे हाथ बांधे थे। नबी ने कहा यही हाथ खोलेगा। कहा ठीक है। कहा नबी या नबी अल्लाह शर्त है, हाथ खुलेंगे लेकिन शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहे तो हाथ खुलेंगे। अब जब इसने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा, कहा अब कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया। अब जैसे अली आगे बढ़े कि चाहते इसके हाथ खोल दे, नबी ने कहा ठहर जाओ। कहा आपकी अली वसीयत पूरी हो गई, अमल पूरा हो गया। कहा मेरी भी वसीयत है। कहा क्या है? कहा इससे कहो कि ये कहे अली वलीउल्लाह, तब इसके हाथ खुलेंगे। बात समझ में आ गई ना? जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहा हाथ बंधे रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहा हाथ बंधे रहे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो हाथ बंधे रहेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते रहो हाथ बंधे रहेंगे। जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं करोगे तब तक हाथ नहीं खोलेंगे। यानी जब अली की विलायत का इकरार किया तो हाथ खुले। ज़माने नूह में जो अज़ाब नाजिल हुआ था, अब लोग पनाह कहाँ लेते? एक तो बचा था अली का घर, दूसरा बचा था खाने काबा, दूसरा बचा था खाने काबा। मंजिल तक पहुंचा रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ। कहा दूसरा बचा खाने काबा। हर इंसान तो खाने काबा के पास पनाह नहीं ले सकता। जो जाएगा पनाह लेने के लिए, जो खाने काबा से मोहब्बत करेगा, दुश्मन नहीं जाएगा। जो दुश्मन होगा उसे खाने काबा उसकी मदद नहीं करेगा, पनाह नहीं देगा। अब अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख में दो ही घर ऐसे मिले, एक खाने काबा, एक जनाब अबू तालिब का घर। या तो जनाब अबू तालिब का बेटा तुम्हें बचाएगा या तो खाने काबा। क्योंकि जब सैलाब नाजिल हुआ, आसमान से बारिश नाजिल हुई, तूफान नाजिल हुआ, लोग हैरान हो गए कि अब पनाह कैसे ले? का तुम्हें मालूम नहीं है जो खाने काबा पे जाएगा उसे पनाह मिलेगी? का देखो खाने काबा उसी को बचाएगा जो काबे का मुजरिम न हो, खाने काबा उसी को बचाएगा जो काबे का मुजरिम न हो, अली उसी को बचाएंगे जो अली का मुजरिम न हो। मुजरिम न हो, अली उसी को बचाएंगे जो अली का मुजरिम न हो। जाहिर सी बात है, अगर आपका दुश्मन होगा तो आप मदद नहीं करेंगे। भाई क्यों करें? हमारा दुश्मन क्यों करें? यही तो सोचेंगे ना। जो दुश्मनी होती है एक दूसरे से होती है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आपकी दिलों में होती है। आप अहले बैत के चाहने वाले हैं, आप भाई नहीं मेरे, आप दोस्त हैं। दोस्त की मिसाल देकर मजलिस तमाम करता हूँ। दोस्त हैं, इमाम हुसैन के हवलदार, लेकिन हमारे दोस्त भाई नहीं हैं। क्यों? का भाई की मिसाल अलग दी गई है, दोस्त की मिसाल अलग दी गई है। का भाई की मिसाल ये है, भाई को कहा गया सोना और दोस्त को अब कहा गया हीरा। का सोना टूटता है तो सोना जुड़ जाता है, यानी भाई अगर आपसे रिश्ता तोड़े तो भाई रिश्ता जोड़ लेता है, लेकिन जब हीरा टूटता तो हीरा नहीं जुड़ता है। इसीलिए मिसाल दी गई है, भाई है सोना और हीरा है दोस्त। दोस्ती ऐसे करो कि कभी टूटे ना, जैसे हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इमाम हुसैन से बचपन का वादा इमाम
हुसैन ने निभाया और हबीब इब्न मलाहिम ने बचपन का वादा करबला में निभाया। ये दोस्ती थी। चलो हबीब तुम्हें करबला बुलाती है, तुम्हें बचपन की दोस्ती याद आती है। हबीब इब्न मलाहिम करबला पहुंचे। ये हबीब वही है जो हमारे हुसैन की मदद करने के लिए करता। आप जो होते हैं ना, मजलिसों में आते हैं, इमाम हुसैन की मदद होती है। जो आपकी आंसू से आँख से आंसू निकलते हैं, ये बीवी के रुमाल में जाते हैं और इमाम हुसैन की तरफ अदादार तारीख बताती है कि नबी का हम शक्ल शबीह अली अकबर, नबी की शबी करबला में शहीद हुई, नबी की शबी जनाबी अली अकबर का बाबा मुझे मरने की बेदा थी। जनाबी अली अकबर इमाम हुसैन के पास आने वाले के बाद कहने लगे, बाबा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर, जिसने तुम्हें 18 वर्ष से पाला है, अब वही इजाज़त देगी। एक मरतबा जनाबी अली अकबर खैमे के अंदर आए और आने के बाद कहते हैं, सुखी अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। भला वो माँ कैसे अपने बेटे की इजाज़त दे दे? आदादारो तारीख बताती है कि हुसैन इमाम जनाबी अली अकबर अलैहिस्सलाम को किस तरह से रुखसत मिली है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा अली अकबर, क्या तुम्हें इसी दिन के लिए 18 वर्ष से पाला था जो आज मरने की रिदा मांग रहे हो? एक मरतबा तारीख बताती है कि जनाबी अली अकबर खैमे से बरामद हुए तो तारीख बताती है कि जैसे भरे घर से जवान बेटे का जनाजा निकलता है। आज़ादारो तारीख बताती है कि जनाबी अली अकबर इमाम हुसैन के पास आए। इमाम हुसैन ने अपने हाथों से अकबर को सवार किया। सवार करने के बाद कहा एक जुमला, कहा बेटा अली अकबर, अपने बाबा को पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना। आदादारो तारीख बताती है अकबर को सवार किया, अकबर का घोड़ा चलना शुरू किया, पीछे से मौला हुसैन चले। आदादारो चलते चलते एक मरतबा कदमों की आहट सुनी, पीछे मुड़कर जनाबी अली अकबर ने देखा कि बूढ़ा बाप कमर पे हाथ रखे हुए चला रहा है। अकबर से बर्दाश्त न हुआ, बाबा के करीब आए और कहने लगे, बाबा अभी तो आपने रुखसत किया है, आखिर क्या वजह है जो आपने मुझे बुलाया है? तो इमाम हुसैन ने कहा कि काश तुम साहिब औलाद होते, तब मैं तुमसे पूछता, जब जवान बेटा मरने जाता है तो बाप पे क्या गुजरती है? दादारो अकबर पलटे। एक मरतबा कहा अकबर, जाते जाते अपने बाबा को पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना। कहा बाबा ऐसा क्यों है? कहा जब मैं आपका चेहरा देखता हूँ, आपकी ज़ियारत करता हूँ, तो अपने नाना रसूल अल्लाह की ज़ियारत कर लेता हूँ। दादारो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अकबर को रुखसत किया। मैदान करबला में अली अकबर आए। दादारो हुसैन दरे खैमा पर आ गए। उम्मे लैला मुसल्ले पर है, ज़ैनब खैमे के अंदर है। एक मरतबा दुआ करना शुरू किया, बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मैं दुआ करती हूँ अकबर के लिए और तुम सब मिलके आमीन कहना कि यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मेरे अकबर को मुझसे मिला दे। एक मरतबा मैदान से अली अकबर वापस आए। कहा बाबा एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं बता दूं इन जालिमों को कि बनी हाशिम के शेर किस तरह से लड़ते हैं। आज़ादारो एक मरतबा कहा, बेटा अली अकबर पानी तो नहीं है, अपनी ज़बान मेरे दहन में दे दो। अकबर ने जैसे बाबा के दहन में अपनी ज़बान दी, फौरन खींच ली। एक जुमला कहा, बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे ज़्यादा खुश्क है। अकबर मैदान में गए और जाने के बाद जंग करना शुरू कर दिया। एक मरतबा अकबर जीन से ज़मीन पे आने लगे। हसीन बिन नुमैर ने एक ऐसा नैज़ा मारा कि अकबर अब संभल न सके। आवाज़ दी, अस्सलाम अलैका बाबा, मेरा सलाम कबूल कीजिए। इतना सुनना था कि इमाम हुसैन अकबर के पास किस तरह पुरते पहुँचे हैं, जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलता है। अकबर के करीब पहुँचे और पहुँचने के बाद नेज़े में सीने में अनी है और अनी टूट गई है। जब नेज़ा लगा है तो जालिम ने अनी तोड़ दी है। एक मरतबा बाबा को सलाम एक हाथ से किया, एक मरतबा बाप ने कहा, बेटा कभी तो आपने एक हाथ से सलाम नहीं किया, लेकिन आज आखिर वजह क्या कि 2 हाथ से सलाम नहीं कर रहे, एक हाथ से सलाम कर रहे? कहा बाबा किसी जालिम ने एक नेज़ा मारा है और नेज़े की यानी तोड़ दी है और ये कहकर मारा है कि सुना है कि हुसैन तुम्हारा बाप बड़ा साबिर है। अब देखते हैं कि किस तरह से नेज़े की यानी निकाली जाएगी। अज़ादारों की जलती हुई रेत पर आस्तीनों को समेटा,
जलती हुई रेत पर बैठे। एक मरतबा एक जुमला कहा, ए बाबा अली, दरे खैबर तो दो उंगलियों से उखाड़ना आसान था, लेकिन जवान के सीने से नेज़े की अनी निकालना बड़ा मुश्किल है। अदादारों नबियों की तरफ मुखातिब हुए, ए इस्माइल आओ, अकबर के सीने से नेज़े की अनी निकालो। इस्माइल, ए इब्राहिम आओ, अकबर के सीने से नेज़े की अनी निकालो। अरे सारे नबियों ने सर झुका लिया, कहा मौला मुझे माफ कीजिएगा, अरे हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे वो कैसा बाप होगा जो अकबर के सामने बैठा है, अरे 57 बरस का बूढ़ा बाप, अरे जवान बेटे के सीने से अरे नेज़े की अनी किस तरह से निकाली है। जब नेज़े की अनी निकाली तो नेज़े की अनी के साथ अकबर का कलेजा भी निकल आया। अरे बाप के सामने जवान बेटे ने